Hello and welcome. You're watching Delhi Dil Se, and this is the show in which we try to capture the pulse of the people as in less than 2 weeks from now, MCD or the civic body here in the national capital will go to polls. The Delhi will be electing its new set of councillors. It's crucial election because remember, MCD has been hugely criticized over the past several years for being maligned in corruption, for doing very little. And today we come to you from the underbelly, the dark underbelly of the national capital. Yes, this is the slum dwellers, this is the JJ clusters, where even today, after 70 years of independence, taps are still running dry. There is no water supply and there are tanks outside every household even today to go and fill up water from the roving tankers. Today we'll be joined by all the three candidates here, also by political party leaders to try and understand why is it that here in the national capital they haven't been able to provide even something as basic as water in everybody's tap. I'm joined by the BJP spokesperson here, also the candidate. Tell me, BJP at this moment is looking at huge anti-incumbency. 15 years you've been in power, but still you can see all around you, every household today has a tanker outside. There is no source of water. Tankers keep roaming around. They have to fill it up with pipes first, then put a kind of a machine to put it up there, and then again. I mean, what are we talking about? First of all, BJP is not facing any anti-incumbency. We have given new candidates, new vision, there's new energy, and then there's the development work of Mr. Narendra Modi. I feel that BJP is going to sweep the MCD elections this time, and I would like to remind you that you took out the problem of water. Water comes under Delhi Jal Board, and Aam Aadmi Party needs to answer many uncomfortable questions on the so-called tanker mafia, which is running in these areas. They had promised, when they came to power in their manifesto, they had promised that they will be giving free connections to every household. They would be giving water lines, they will be giving clean water. But they have promoted the water tanker mafia. So the most important question. I'm going to take that question to the MLA from here, from Aam Aadmi Party. Sir, बात तो वो सही कह रही हैं कि पानी जो है वो दिल्ली सरकार के अंदर आता है, पर आपने ये भी प्रॉमिस करा था कि फ्री पानी देंगे, लेकिन यहाँ पर कई सारी महिलाएं खड़ी हैं जिनसे हम अभी बात करेंगे, जो ये कह रही हैं कि पानी का बिल तो मुफ्त हुआ नहीं, जो आ रहा था वो भी बंद हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि दिल्ली में सब जगह पानी दिया गया और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा लिस्ट हमने बनाया हुआ है जहां पर हमने सब जगह पानी दिया। यहाँ तो खूब पानी आ रहा है और जो लोग कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। दो टैंकर हैं, वो भी अगर किसी की हेल्प के लिए जाते हैं तो जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पर सारा पाइपलाइन से पानी आता है। यहाँ पर लोगों से सीधे बात कर लेते हैं। यहाँ पर किस किस के घर पे रेगुलर पानी का सप्लाई आता है? नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता जी, नहीं आता। ये तो यहाँ रहती ही नहीं है, हम रहते हैं। अच्छा एक सेकंड। हाँ, हम खानपुर में हम रहते हैं, हमें पता है कि पानी आता ही नहीं है। रात को 2 बजे 1:30 बजे के बाद पानी आता है, उससे पहले नहीं आता। So what is an issue that really gets temperaments up? सबके एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे। मैम, यहाँ पे ना कनेक्शन लोगों ने ना मीटर नहीं लगा रखे हैं, क्योंकि ये हम देखा हमने कि मोस्टली 99% के घर में मीटर नहीं है। तो बोलते हैं कि बिल कैसे ज्यादा आते हैं। बिल तो जब कनेक्शन नहीं तो बिल कहाँ से आएंगे? तो यहाँ का जो और एक सेकंड आप बताइए, आप यहीं पर रहती हैं? बिल्कुल, मेरा घर सामने ही है और हमारे घर के बाहर टैंक रखा है। रात को 2 बजे उठ के कभी वो भी वीक में 2 डेज पानी आता है, वो भी कभी रात को 2 बजे उठ के मेरी सांस भरती है। ये एक बात बताइए, कितने सालों से? एक सेकंड कितने सालों से ऐसा है? मेरी शादी को 21 साल हो गए, मैं 21 साल से यही प्रॉब्लम झेल रहे हैं और हम बार शिकायत 21 सालों से ये प्रॉब्लम है। 21 years and this is a problem. Very interestingly, the BJP candidate who's standing in elections this time around from MCD, we went to his house today and even his house did not have water. सर, आपके घर पर हम गए आज और यहाँ पर तो इतना शोर शराबा हो गया है सिर्फ पानी के नाम पर। कितना समझ में आता है कि कितना इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन आप कैंडिडेट हैं, आपके घर पर पानी नहीं है, ऐसा क्यों है? पानी की बहुत बड़ी समस्या है, हर गर्मी में ये हाल होता है। मेरे खुद के घर के आगे 2 टैंकियाँ देखी होंगी आपने, हर घर के आगे टैंकियाँ रखी है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये कह रहे हैं पानी आता है, हम कह रहे हैं पानी नहीं आता। आप देख लीजिए क्यों टंकियाँ रखी हैं बाहर लोगों के यहाँ।
यदि पर पानी वो ये भी कह रही हैं कि 21 सालों से वो यहाँ पर रहती हैं और 21 सालों से पानी नहीं है, तो ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की तो गलती नहीं हो सकती है? ये आम आदमी पार्टी की गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पहले भी तो सरकार कांग्रेस की थी, या कांग्रेस की गलती है। और जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से यही तो कह रही है कि भाई हम पानी फ्री कर रहे हैं। अरे फ्री तो तब करोगे जब पानी आएगा, और वो भी फ्री नहीं है, जो थोड़ा बहुत आता है। कांग्रेस कैंडिडेट भी है हमारे पास, सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि 21 साल हो गए, 22 साल हो गए, पानी आ नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस सरकार में थी, उनसे पूछा जाए। नहीं, हमने जब यहाँ पे मैक्सिमम 12 हमने लगाए कांग्रेस के टाइम में। मुझे नहीं लगता आम आदमी ने कोई 12 भी यहाँ पे लगाया है। पानी की यहाँ विकट समस्या है, इन्होंने मुद्दे को भटकाया। जो सोनिया विहार पाइपलाइन हमारा प्रोजेक्ट था जो चल रहा था, इन्होंने उसको भी डिसकंटिन्यू कराया। ये झूठ बोलते हैं। मेरे घर में तकरीबन रोड से 600-700 मीटर पानी मुझे बाहर से लेके जाना पड़ता है। मेरे घर पे पानी नहीं है आज के डेट में। आज मैं पूरा जगह घूम रही थी यहाँ पर, एंड मैंने ये नोटिस करा कि यहाँ पर मैं भीड़ देख सकती हूँ, कितने लोग पानी के मामले पर बोलने के लिए अभी आए हैं। अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा पाए यहाँ पर, इफ माय कैमरा पर्सन कैन शो यू द अमाउंट ऑफ पीपल हु गैदर्ड टुडे ओवर हियर टू टॉक अबाउट द इशू ऑफ वाटर which is so pertinent here in MCD. Just imagine, this is the national capital of the country, and even here after 70 years of independence, the taps are running dry. There is no regular water supply. In fact, you see a lot of mosquitoes flying all over. This is also the season where just today we've got reports that there have been, today, this time around, before time, there have been cases of dengue and chikungunya being recorded. Sir, MCD की बात करते हैं। MCD की बात में हमें बताया गया कि अभी सीजन तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी से ही डेंगू चिकनगुनिया के मामले आने शुरू हो गए हैं। तो MCD जो 15 साल से पावर में है, उसका कोई दायित्व नहीं है? देखिए, अभी मेरी कॉलोनी में कोई ऐसा मामला अभी तक नहीं आया है डेंगू और चिकनगुनिया का इस सीजन में। और हर सीजन में मैं खुद जा के लोगों के घरों में धुआं करवाता हूँ। खुद जाता हूँ मैं ऊपर तक, मंजिल तक, ऊपर तक, सीढ़ियों तक, सब में धुआं करवाता हूँ, दवाई छिड़कवाता हूँ। ऐसा कौन सा काम नहीं है जो मैं यहाँ नहीं करवाता। इतनी पब्लिक खड़ी है कॉलोनी में। सीवर ये कैंडिडेट की बात करिए। I want to understand from you that in a situation where we've got a constant turf war between the BJP and the Aam Aadmi Party. BJP went on strike several times on the issue of sanitation, saying there are no funds being released. Yeah, you see, I would like to remind you that last year when there was a dengue outbreak, the health minister was out of the country. 5 of the 6 ministers were out of the country, and only when this little boy, 3-month-old Avinash died, then these people came into action, and then they released the funds in spite of Ministry of Health giving them repeated reminders to release the funds. Actually, the Delhi honest taxpayers' money has all been utilized. Instead of providing these basic services, it has been used in campaigning 97 crores. I will let Aam Aadmi Party respond to that. But let me remind you that health is a state subject. Sanitation is a subject of the MCD. That comes under you. But I'll let Aam Aadmi Party. देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जहाँ हम बैठे हैं ये बीजेपी के कैंडिडेट का घर है। तो ये घर के सामने जो सारे रिश्तेदार हैं वहाँ पर ये सभा हो रही है, तो सारे के सारे लोग ये घर है। देखिए, अच्छा, आप मुझे इशू पर बात बताइए। दूसरे इशू पे आते हैं। देखिए, सैनिटेशन की आपने बात कही। आपने पूरी दिल्ली में देखा कचरे के पहाड़ लगे हुए। अगर आप बाहर से आगे देखें तो जो ढलाव है भरे हुए हैं। यहाँ देखें मक्खियों का अंबार है। अभी हम अप्रैल में बैठे हैं और मक्खियों का अंबार है। आप इसके साथ में जाएंगे तो कूड़े का अंबार लगा हुआ है। दिल्ली में लोग कह रहे हैं कि भैया हमें गंदगी से राहत मिले। हम आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं जैसे आम आदमी पार्टी क्या करेगी इस पर मुझे बताइए। देखिए, हम पहले तो ये करने जा रहे हैं कि जो भी हमारे पास अपने अपने प्रोजेक्ट हैं, हमारे जो काउंसलर हैं वो घर घर जाकर जिस तरीके से मैंने खुद एज एमएलए होकर फोगिंग कराई है, फोगिंग कराएंगे। घर घर जाकर जो लोग सफाई नहीं करा रहे, आपसे तो ये कह रहे हैं ना कि आपने वाईफाई का फ्री फायदा करा, आप नहीं कर पाए, तो क्या गारंटी है कि आप ये वाली बात करेंगे? हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए, MCD आपको पता वर्ल्ड में पहला नंबर है भ्रष्ट MCD होने का। 10 साल से भाजपा की सरकार MCD में है। और वहां पर घोस्ट एम्प्लॉय, आपको भी पता है, 21,000 से ज्यादा घोस्ट एम्प्लॉय पाए गए। 19,042 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेंशन MCD करप्शन करके खा गई। करोड़ों रुपए डेंगू के ऊपर आते हैं वो खा जाते हैं। करोड़ों रुपए
फोकिंग के लिए आते He's हैं। basically तो trying मैं- to say, I've got your point, sir. He's basically trying to say that Aam Aadmi Party's basic campaign motto this time in MCD has been that if you want seamless governance, vote us into power. That's the only way the municipal corporation and the government can work seamlessly. I would like to tell you that the funds for local bodies, they come under the state government according to the constitution. This time we have promised that BJP will definitely come to power and will ensure that funds to Municipal Corporation of Delhi are given directly from the center without involving the government. I would like to tell you that he is talking about corruption. I would like to ask him that 404 files by the Shunglu committee, 16,000 की थाली, 97 crore of Delhi spent in Punjab and Goa. What are these people talking about corruption? Dr. Nikunj Agarwal, Dr. Soumya Jain, आपके अमर मनी त्रिपाठी को टाइप 5 का बंगला, इनको इतनी अलॉटमेंट्स, इतना सारा भ्रष्टाचार इन्होंने किया, साफ सफाई के मुद्दे पे अन्ना हजारे के नाम पे यहाँ आए। Okay, we are digressing now. I'm trying to understand from the Congress candidate here, sir. यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है वो आपस में कह रहे हैं इन्होंने नहीं करा, उन्होंने नहीं करा। आपका तो एक भी एमएलए भी नहीं है स्टेट में। आप क्या जाके लोगों से इस समय वोट मांग रहे हैं आज? क्या कहना चाह रहे हैं? और काफी डेस्परेट है एक तरफ से अगर कहा जाए कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने देखा पी चिदम्बरम से लेकर जयराम रमेश, राहुल गांधी सब कैंपेन कर रहे हैं एमसीडी इलेक्शन के लिए इस बार। मैडम ये मैं सुबह पदयात्रा की है, ये मेरा एरिया है, ये सफाई है इस क्षेत्र की। अब देख लिए, मैंने सुबह पदयात्रा की है, ये मेरे एरिया की पोजीशन है। जो कहते हैं एमसीडी 10 साल से इस वार्ड में बैठी है, ये कहाँ थे? देखिए ये इनकी हकीकत है। ये रोड कल बना है रात को, यहाँ पे गड्ढे थे जो कहते हैं कि हमने काम किया है। 18,200 डेंगू के केसेस आते हैं। आम आदमी बीजेपी लड़ रही है, पब्लिक मर रही है। केजरीवाल जी बेंगलोर में इलाज कराते हैं जब यहाँ डेंगू से लोग मरते हैं। मुझे बताइए 109 करोड़ रुपए वो ब्रीडर चेकर पे बीजेपी खर्च करती है, जिनका पता नहीं है। 44 करोड़ रुपए सीएजी कहती है कि वो एक्सपेंसेस ही नहीं है, वो डेंगू के ऊपर उन्होंने बीजेपी ने खर्च कर दिए। वो पैसा गया कहाँ? पैसा कहाँ गया? मैं लोगों से यहाँ पर पूछना चाहती हूँ। सर आप बताएं, सर आप यहाँ पर बताएं कितने सालों से रहते हैं यहाँ पर? काफी साल हो गए। काफी साल हो गए। आपने तो कई सरकारें देख ली होंगी, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी तो आपस में लड़े जा रहे हैं। काम आपको लगता है कोई करा आज तक? देखो ऐसा है मैडम, काम तो जो भी आते हैं ऐसा ही करते हैं। ढुलमुल मैं इतने दिन से यहाँ रह रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले कि हमारी कॉलोनी का कोई काउंसलर भी हो तो भी हम उसको शिकायत तो कर दें। अब एमपी एमएलए सब बाहर के तो हम तो धक्का खाते फिरे और करें क्या? पहली बार कॉलोनी का काउंसलर के लिए सुरेश खंडेलवाल जी खड़े हुए हैं। आप तो उनके रिश्तेदार हैं, आप इसलिए बात कर रहे हैं। सर आप मुझे बताएं, आप कितने सालों से रहते हैं यहाँ पर? यहाँ मेरा बचपन ही गुजर गया। पूरा बचपन गुजर गया? हाँ, तो 25-30 आम साल। आदमी पार्टी। अच्छा ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों में ज्यादा झगड़ा हुआ है। आपको लगा ऐसा ज्यादा झगड़ा हुआ है 2-3 सालों में? देखो जी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हमारी मन में आएगा ना किसी को भी देंगे हम अपनी मर्जी से। लेकिन कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। के बाद कोई नहीं बोलता कोई नहीं बोलता ना, पक्का है। आप बताएं क्या जी, आपको क्या लगता है इधर तीनों पार्टीज में कौन आपको लग रहा है ज्यादा काम करा है अभी तक? हमारे पूर्व काउंसलर ने भी अच्छे काम कराए हैं। वो डेली आते थे यहाँ पे इस क्षेत्र में, डेली आते थे। सुबह 6 बजे यहाँ डेली सर्विस देते थे। All right, I also have all the 3 councillors with me and I haven't spoken with the Aam Aadmi Party candidate here. So if you can shift that side please. I want to understand, यहाँ पर कई लोग बात कर रहे हैं कि एमएलए एमपी तो बाहर का होता है, काउंसलर जो होता है वही असल में काम करता है। तो आम आदमी पार्टी क्या काम करने वाली है इस बार, बताएं हमें। देखिए जो पूरा वार्ड है, पूरा वार्ड क्या, लोग ये कहते हैं कि मेरा एरिया पूरा वार्ड क्या, पूरी दिल्ली कूड़े का ढेर बना दिया है एमसीडी में बीजेपी जब से है। ठीक है जी, इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने क्या करा वो पूरे रिकॉर्ड आप निकाल। 2G 3G के बारे में बात नहीं करूंगा यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ क्या करने वाले हैं, पूरे वार्ड को गली गली में कूड़ा पड़ा रहता है, वो सारा सफा कराना में स्वच्छ कराना पूरा वार्ड का वार्ड जो जिम्मेवारी जहाँ पर आ गई। पर पानी जो ऑलरेडी आपके पास है, दिल्ली जल बोर्ड आपके पास है, आज तक क्यों नहीं आ रहा पाइपलाइन से यहाँ पर? इस वार्ड में पिछले 30, 40, 50 सालों से इस रोड के इधर कभी पानी नहीं आया। 2 साल में आम आदमी पार्टी ने 99% गलियों में पाइपलाइन डालने का काम करा है। घर घर जाके रात को 2-2 बजे तक पाइपलाइन डलवाई है। I'll give the last word to the BJP and the Congress candidate over here. One second. Sir, ये आम आदमी पार्टी वाले जो कैंडिडेट हैं, यहाँ पर इतना नॉइज है that it's so difficult to speak. Really, the sentiment so high, perhaps before the upcoming MCD election.
elections. But I want to give the last word to the candidates. I just want to give the last word to the candidates. Sir, आप दोनों यहाँ के काउंसलर्स खड़े हो रहे हैं, इलेक्शन पे लोगों के पास जा रहे हैं. मुझे एक सिंपल सा सोल्यूशन बताएं कि यहाँ के पानी की समस्या कब आप कैसे खत्म करेंगे? पानी की समस्या खत्म होने का 1 मिनट में चाहे तो यहाँ का विधायक 1 सेकंड के अंदर खत्म कर सकता है. केवल एक 50 मीटर का पाइप लाइन डलनी है. वो 1 साल से वादा कर रहे हैं कि वो पाइप लाइन जुड़ जाएगी, लेकिन 1 साल से लाइन नहीं जुड़ी. 1 साल से हमें कहा जा रहा है कि आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएंगे. आखिर हम ही लोगों ने पैसे इकट्ठे करके सीसीटीवी कैमरे लगाए, लेकिन इनकी तरफ से कैमरे नहीं लगे. All right, the Congress party, sir, I want to give you also a fair chance. Tell me, आप क्या करने वाले हैं आगे पानी के कनेक्शन के लिए? ये जो जल बोर्ड ने सोनिया विहार से हमारे यहाँ पानी की लाइन आई थी, आम आदमी के 2 MLA प्रकाश जारवाल जी, दिनेश मोनिया जी, जिन्होंने हमारा आधा पानी जो हमें अंबेडकर नगर को मिलना चाहिए था, उसकी लाइन बत्रा हॉस्पिटल की तरफ विदाउट किसी सैंक्शन प्लानिंग के डेफिनेटली मैं अपने हमदर्द में दी है. मैं उस पानी को हटा के अपने वार्ड के लिए लेके आऊंगा, डेफिनेटली पब्लिक के लिए. All right, so you've heard from all the 3 candidates here from Kanpur in South Delhi. This, like we said, is the darkest underbelly of the national capital, and people and sentiments really high. Remember, less than 2 weeks from now, Delhi will be voting for all the 3 MCDs. This will decide their future in areas like sanitation, in areas like sewage management, even health. So we'll have to wait and watch for what is really up next when it comes to all the 3 MCDs.